ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime. प्रज्ञा प्रविता पत्री लगातार खबर ने अपडेट देउछथि। प्रज्ञा आपण देखुथिले डोनाल्ड ट्रम्प प्रतिक्रिया रखि सारिछंती एवं तापरे मध्ये नेतान्याहु मध्ये खूब प्रशंसा करिसंती अमेरिका रो ए जो एंट्री को, किंतु बड़ कथा हला ए तो बड़ धरणर आक्रमण हला बा अमेरिका निजर शक्ति प्रदर्शन कला तापरे आशा करा जाउछि ईरान मध्ये चुप रहिबो, किंतु जदि ईरान चुप न रहबे आगो को बड़ धरणर कार्यानुष्ठान हेबो बोली अमेरिका मध्ये चेताई दैछि। निश्चित भाव में जो कथा टिके आगु अपन टीवी स्क्रीन में देखौतिले जे डोनाल्ड ट्रम्प आक्रमण परे प्रेस मीट करिसंती, सांबादिक सम्मेलन करिसंती आ ये सांबादिक सम्मेलन रु अनेक किछि जिंस आगो को हिंट्स मध्ये से छाडी दैछंती। कोन कहिले सी ना सी प्रथमे कहिले जे सी सफलतार सहित आक्रमण करिसंती, किंतु एबे भी अनेक जगह रहि जाइछि। तेणु जदि ईरान वर्तमान आगो को शांति आड़ को न बढ़े तेबे ट्रेजेडी हबो ईरान सहित।
अर्थात आहुरी भयंकर हो पारे एवं ता परवर्ती समय एबे आउ एक ट्वीट माध्यम से सूचना दउछंती जे जदि ईरान कौनसी भी प्रति आक्रमण अमेरिका एवं अमेरिकार कौनसी भी होची जो यूएस रो मिलिटरी उपरे करे तेबे तार परिणाम खूब भयंकर हम जो आक्रमण अमेरिका करिछि ताठारु भी अधिक भयंकर आक्रमण ईरान को फेस करिया को पड़िबो। तेणु बर्तमान जो से हिंट्स देले एवं कहिले जे जो तीनिटारे से आक्रमण करिसंती आ एबे भी अनेक किछि से छाड़ी जाइछंती ताकू बर्तमान मैप रे बुझिबा जे से को तीनिटारे आक्रमण करिसंती आ को बाकी को जिनस गुडा रहि जाइछि जाको से इंगित करी कहउचंती एवं चेतावनी दउचंती जदि ईरान एठी न अटके तो से आगो को से जगह गुडी को भी टारगेट करि पारंती ताकू बर्तमान मुटिके स्क्रीन रे देखैबी ये देखुचंती ये होची ईरान रो होची मैप और ईरान मैप रे ही एठी अछि सब तार होची न्यूक्लियर साइट बा आणविक केंद्र गुडी को ये होला तेहरान जहाँ की ईरान राजधानी और तार दक्षिण रे ये होची फोर्डो 1 नंबर साइट ये होची नतांज 2 नंबर साइट और ये होची इस्फहान ये होची 3 नंबर साइट ए 1 2 और 3 ए तीनटा साइट रे ही वर्तमान आणविक केंद्र उपरे अमेरिका आक्रमण करिछि ईरान नो जोथि पई कि B2 बम्बर व्यवहार कराइछि ताकू गतकाली राति रे आकू उड़ा हिची आ जो फोटो कथा जो कहाउछि ये सबुठु इंटरेस्टिंग आ सबुठु कहि परिबा जे अधिक सुरक्षा बळ भितरे थिला काहे ना जो फोटो जो न्यूक्लियर आणविक केंद्र अछि ये जो माटी देखुचंती माटी रु खूब तळे अछि आ कहा जाउछि जे 22 महला कोठा तार उच्चता जेति की माटी तळे सेति भितरे अछि ये प्लांटा बा ये केंद्रटा अर्थात चिंता करंतु माने माटी रु ऊपर जो 22 महला कोठा आमे देखुचु माटी भितरे से गोटे 22 महला कोठार जति की साइज हबो जति की उच्चता हबो से भलिया उच्चतार ही ता भितरे जेकी से माने आक्रमण करिसंती और सेति की सुरक्षा बळ भितरे ए फोर्डो न्यूक्लियर प्लांटा थिला और ताको वर्तमान से आक्रमण करिछि अमेरिका तार B2 बम्बर द्वारा। तो वर्तमान प्रश्न आसुछि जे अमेरिका वर्तमान को केंद्र को छाड़ी जाइछि जहां से इंगित करके मध्य कहि गले जे जदि ईरान एठी न अटके तबे आगो को आहुरी भयंकर हबो ताको वर्तमान देखिबा गोटे रही अराक आउ गोटे तो देखिले इस्फहान गला आउ गोटे अर्धकान एगुड़िक सब जगह गुड़िक है एगुड़िक रिसर्च सेंटर गुड़िक अर्थात आणविक केंद्र एवं यूरेनियम एनरिचमेंट ज्ञानकौशल आग को नापी एगुड़िक हूँ रिसर्च कर सब रिसर्च सेंटर गुड़िक तेणु ये रिसर्च सेंटर गुड़िक बाकी अच्छी ता बाद सबुठु इम्पोर्टेंट और गुरुत्वपूर्ण होची बुशेर ये होची बुशेर होची न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर जहाँकि वर्तमान कार्यक्षम अच्छी एथिरु न्यूक्लियर मटेरियल भी वर्तमान उत्पादन करा जाउछि आ ये 2013 मसियारु कार्यक्षम अच्छी तो याकू वर्तमान हाथ मरा ही नहीं आ जदि या ऊपर आक्रमण हबो पूर्वरु ही IAEA पक्षर चेतावनी दिया जाइछि रशिया चेतावनी देछि एवं समग्र विश्व मध्य अलर्ट मोड रे अछि जदि या ऊपर को आक्रमण होई जाय तेबे हुए तो सांघातिक हे जिवो काहेकि ना या धरे आक्रमण कला माने या धरे जो न्यूक्लियर मटेरियल गुडी अछि जे ये कार्यक्षम अछि या ऊपर आक्रमण हैला माने विकिरण हबार संभावना बहुत बढ़ी जिवो विकिरण हबो आ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स गुडी को वायु संस्पर्श रे आसीबा परे वायु को विषाक्त कर देबे ता तळे जेंति देखुचंती जो बुशेर प्लांट तळे गल्फ ऑफ ओमान अछि अर्थात ये समुद्र जो देखुचंती ए ओमान ये मध्य कंटामिनेट हे जिवो अर्थात या पानी भी विषाक्त होई जाई पारे तो पानी रे माछ फाछ जहा थी बसी विषाक्त हबो तेणु लंबा किलोमीटर तो किलोमीटर अर्थात 100 किलोमीटर जाए ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बा विकिरण व्यापी जीवो एवं बहु लक्षाधिक संख्यार जो राजधानीवासी जो ईरान लोकों को विस्थापित करने को पड़ो काढ़ा को पड़ो वायु विषाक्त हम वायु संस्पर्श में जी आसो तार भयंकर परिणाम हो पारे तेणु वर्तमान सुधा से बुशेर आणविक केंद्र को ईरान माने अमेरिका छुई नहीं किंतु वर्तमान ट्रंप गोटे हिंट्स माध्यम कहीदे गले जदि ईरान ये न अटके तेज एबे भी आहुरी अनेक जगह बाकी अच्छी जहाँकि अमेरिका छुई नहीं परिणाम खूब भयंकर हम तेणु या वर्तमान देखा बाकी रोचे ईरान वर्तमान कौन अमेरिका प्रति रिटालिएट करुच्ची ना करू ना जिते कि ईरान पक्षर प्रतिक्रिया आसिलानी जे ईरान सठिक समय जवाब दब ईरान चुप बसब ना एवं अमेरिकार जो इंटरेस्ट अच्छी इंटरेस्ट कहले मध्य प्राच्य में अमेरिकार जो एयरबेस अच्छी यूएस आउ हूँ अमेरिका जो प्रकल्प बा प्रोजेक्ट गुड़िक कम करुच्ची से सब को भी ईरान टार्गेट कर क्षति पहुंचाई पारे तेणु बर्तमान आग को ये जो आक्रमण सरिला आक्रमण परवर्ती समय ईरान पदक्षेप कौन रोचे और ईरान जदि किसी करुच्ची परवर्ती समय अमेरिका तो चेतावनी दे सारा कि परवर्ती समय स्थिति हुए तो आहुरी भयंकर हो पाए प्रज्ञा बड़ कथा है अमेरिका एंट्री कर कथा समस्त अनुमान करुले किंतु हठात एभली आक्रमण कर ईरान उपरे ताहा मध्य गोटे प्रकार बड़ चर्चा है वर्तमान समय जो ईरान तरफ खामिनेई कही सारी जे सठिक समय गोटे बड़ पदक्षेप नियाजिबो किंतु एक कथा भी आमे जानिचे
जितेबाला अमेरिका एंट्री कर सारी आग को विश्व समुदाय यह कौन सूचाऊँ बा कौन वार्ता देउछि मिलित जाति संघ वर्तमान समय चिंता प्रकट करुछंती किंतु ईरान जदि हुए तो शांत रहे बा चुप रहे ताहले हुए तो आमे कहि परिबा आगो को किछि गोटे बड़ भयंकर न होई पारे किंतु ईरान तरफ मध्य प्रतिक्रिया आसी सारी जे बड़ किछि घटना घटी पारे किंतु आउ आमे मध्य देखिछे जून 13 परठू ईरान लगातार भाबे इस्राएल उपरे आक्रमण करूछि तो ईरान जे एठी गोटे छोटिया प्लेयर बोली भाबिया उचित नुह कहीं हुए तो इज्राएल भी भावी नथिला जे ईरान इज्राएल एते सारा क्षति पहुंचे दे पारे ए तमाम 10 दिन युद्ध भितर ईरान भी इज्राएल जो मोसाद हेडक्वार्टर अच्छी ताकू उड़े देछि प्रमुख जो सहर गुड़िक अच्छी हाइफा कहतु तेल अवीव जहाँकि इज्राएल राजधानी ताकू गंभीर क्षति पहुंचे बहु परिमाण में क्षति पहुंची आगामी दिन में भी जब ईरान आहुरी आक्रामणात्मक ये को जाऊँगी तेज निश्चित भाव में मध्य प्राच्यर ये जो युद्ध सी आहुरी घनेब और आगक जीव किंतु जो कथा गोटे उठुचे अमेरिकार हस्तक्षेप पर कौन ये गोटे विश्व युद्ध आड़ को मुहाइब कि ये दुईटा दिग अच्छी कारण विश्व युद्ध आड़ को आगे हेले रशिया और चाइना से पक्षर भी गोटे प्रतिक्रिया आसीपे से भी ये हस्तक्षेप जब करते तेज हुए तो ये युद्धर दिशा बा दिग आउ कड़े जापे कहीं पूर्वर भी इतिहास अच्छी जिनस जिते अमेरिका जो जो युद्ध मुंड पुरेची आक्रमण कर इराक कहतु कि सद्दाम हुसैन को हटेबा को कहतु से समय भी केबे भी वर्ल्ड वार आड़ को जाई नाही और वर्तमान भी स्थिति सेमती ही अच्छी जदि ईरान आगू किसी न करुच्ची अधिका तेरे ये सब किसी थमिज इज्राएल ईरान आक्रमण प्रत्याक्रमण चलो किंतु आंचलिक युद्ध ये रही सीमित रही कि परवर्ती समय ईरान अमेरिका को टार्गेट करुच्ची अमेरिका पुणी थे आक्रमण ईरान को आसुची ईरान समर्थन में आउ दुईटा देश बाहर जदि रशिया चीन एवं भी नीरव रही समर्थन करुच्ची जदि तार नीरवता भांगी सीधा सड़क से आसब रशिया जे कि निजे गोटे युद्ध वर्तमान 3 वर्ष अधिक है अच्छी जदि सी भी ये युद्ध को आसवा को चेष्टा करिवो तेबे जे कि गोटे कहि बड़ कन्फ्लिक्ट बा विश्व युद्ध आड़ को मुहाई पारे किंतु वर्तमान समय रे ईरान नो मूव ईरान नो पदक्षेप एवं ए सब को लेकिन वर्तमान सब किछि रही आग को कौन बढ़ी पारे बिल्कुल बिल्कुल आग को कौन हेबो ताकू भी अपेक्षा किंतु जदि खामिनेई शांत न रुहती आग को परिस्थिति गोटे विश्व समुदाय बड़ चिंता आनी पारे धन्यवाद प्रज्ञा वर्तमान अपडेट।